Thanks a lot, Sanjay. Now You're welcome. I'm sharing this one. This is called Kal Purush Kundli. Okay, it's called Kal Purush Kundli. Kal Purush, it means whoever the first person, or we can say the universal Kundli. Okay, so whenever the first universe born, this Kundli created on that moment. Okay, so it called Kal Purush Kundli. So whenever we say Kal Purush Kundli, then you should understand we are talking about the universal Kundli. Okay, everyone understood? Okay, and then Sorry, Kishan, did you open it? okay, open it again. This is Kal Purush Kundli. Okay. So unmute yourself, everyone, please. Unmute yourself, everyone. Okay, this called Kal Purush Kundli. So Kal Purush Kundli, it is a Kundli of universe. So these planet, these bhavas. You see, number one, Aries. So whatsoever Rashi here is, but Aries impact will always there. In example, if we can say in this first house, maybe there is a number 7, but Aries impact always will be there, because this is the Kal Purush. This is the in our DNA, we can say. So this is a base of the universe, or whoever person born in this universe. This is the base. This is a, we can say, this is a he's a internal side. We can say the internal side. So this kundli always be there, a part of his kundli, So, when he born. Kishan, a question. Last week we did Bill Gates' chart, just as an example, and his ascendant was Gemini, right? Yes. So then what you're saying is that even though Bill Gates' ascendant is Gemini, there's still an impact of Aries on the ascendant. On the like ascendant. For everybody else. Everybody else. Because without Aries, nobody will born. Aries number 1 is the born Rashi. So this is the first Rashi. When the first person enter in this universe, he come through the Aries. Okay. So that impact always will everyone with everyone. Okay. So remember this is the Kal Purush Kundli. When we talk about the Kal Purush Kundli, so that you should remember that subject. आपको वो ध्यान रखना होगा कि किस काल पुरुष कुंडली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. तो ये यूनिवर्सल है, और इसमें कोई it's about only remembering for ourselves. Okay. Thank you. Now the second I want to share with you. Okay, this is the second one. This called houses. Please write down.
These are the houses. Well, we can see, we can only see the Cannot directory. Yeah, did you see the The first Kal, house? the, Ka- Sec- the no, we can't see that. But Kal Purush, when you opened it, we saw it, but here we can only see the directory. Okay. पंडित जी हाउस पे क्लिक कीजिए ताकि वो फाइल ओपन हो जाए. Okay, is already I clicked it, but I don't know. It's the screen when you're sharing, you can see the whole screen. Yeah, there's it. We can see it now. Okay. So this is called houses. When we're talking about the first house, this is called first house, always in the chart. Okay, is it clear, everyone? जी. Okay. So you know ये जो है इसको कहते हैं फर्स्ट हाउस, ठीक है. So इसका जो लॉर्ड होगा, if suppose he's sitting in a ninth house, so we can say the first house lord is sitting in the ninth house. Okay. Or either the first house lord, if he's sitting in a fourth house, so we say first house lord is sitting in a fourth house. So this is the language this side will go. Okay. And then again, okay, this is one more picture. Are you able to see, everyone? No, we're seeing the directory. No. Only Hello? directory. Okay. Hmm. Let me go. Guruji, your voice is not audible Voice for is me. now. Yes. Okay. Hello? Yes. What happened? क्या हुआ? Hello? हाँ खुल गए विनीत, पंडित जी, खुल गए. बोलो विनीत. आवाज नहीं आ रही? I can hear you clearly. Okay. I don't know. You have some connection broken or something. Okay. This chart, as you see, this chart. So like you saw the Kal Purush Kundli, na? Yeah. You saw Kal Purush Kundli. So that Rashi impact always that house, and these planets which are you seeing over there, these planets, whatever Rashi is there, doesn't matter, but these grahas impact always will be there, always. So it means suppose कीजिए ये जो सूर्य है यहाँ पे, तो सूर्य जो है वो हमेशा in the first house there is sun, is always impact on ascendant, is the karka of that house. So इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. Kishan, I'm so sorry. Can you read it in English for me? Because I can read it, but it'll take a while. Okay, no problem. In a first house there is sun, eh? This called sun. Okay, is the karka of first house. Okay? No, it's fine. I just need the names. Yeah. Okay, That's this Jupiter, right? is Jupiter. This is Mars. Mars. This is Moon. Moon. This is also Jupiter again. Mm-hmm. And then this is house of Ketu and Buddha.
It means Mercury and Ketu. And this is house of Venus and Mercury. Again, there is a 8th house, we call Saturn and Mars. In the 9th house, again Jupiter. And then Saturn, 10th house. Saturn is Karka of the 10th house. This is again 11th house, Jupiter is also there. In 12th house, Jupiter and Rahu. These are the Karaka, these are the main stakeholder of the houses. Okay. So these land belongs to these planets. Okay, Sanjeev? Yeah, I understand. Thank you. I got it. Yeah. These land, you know, this circle, this is belongs to that planet, particular planets. Okay. Okay. So whoever Rashi comes in this, they have some impact. This is called landlord. These are the Landlords. landlords. Okay. And whoever Rashi comes, whoever planet comes, they will become either tenanted or untenanted. They will be tenanted. Okay. With the Rashi or the planet? The Rashi and planet as well. Both are they will be tenanted. They are not. These land belong to that particular person who is sitting there in these houses. Okay. So their impact always will be there. If they are there or either not, that doesn't matter. But this land belongs to them. Okay. Anybody have any questions? A question: when do you feel the impact? Is it during a dasha? Is it during a transit? No, you know, during the prediction, whenever you want to do the prediction, you have to must include that planet. When you want to predict someone, either sitting anyone over there, either Saturn is sitting in a first house, okay, but he have the impact with Sun as well, always will be, because Sun is the landlord. वो सन जो है इस भूमि का, इस भाव का, इस घर का मालिक है. Is the landlord of that particular house. Okay. Okay. Anybody, any other person have any questions? Ashok ji? मतलब इसमें ये है कि अगर जैसे सूर्य है फर्स्ट हाउस का मालिक है, उसमें चाहे वो केतु बैठा हो, चाहे राहु बैठा हो, चाहे जो मर्जी वो बैठा हो, वो सूर्य को भी इफेक्ट करेगा ही करेगा. नहीं, सूर्य उनको इफेक्ट करेगा. सूर्य का इम्पैक्ट उन ग्रहों पे रहेगा. इनका मतलब जैसे मान ली आप सपोज कीजिए, आप जिस घर में हैं, सपोज एक कह रहा हूं मैं, आप जिस घर में हैं वो घर किराए का है, ठीक है. तो उस घर में आप सब कुछ करेंगे, लेकिन थोड़ी मर्जी तो जिसको आप किराया देते हैं ना, उसकी भी चलेगी, उसकी भी थोड़ी मर्जी चलेगी. वो कभी भी आपके घर पे आके पूछ सकता है कि दिवाली ठीक है, सब बढ़िया है ना. सो वैसा ही इम्पैक्ट इनका रहेगा. ये लोग मकान मालिक है, ठीक है. ऐसे ही दूसरे भाव में बृहस्पति धन का कारक होता है, ठीक है. सूर्य शरीर का कारक होता है. ये पहले भाव से हम क्या देखते हैं? शरीर देखते हैं, बॉडी देखते हैं. तो हमारी बॉडी का कारक सूर्य होता है, ठीक है. दूसरे भाव से हम धन देखते हैं, पैसा. तो बृहस्पति गुरु उसका कारक होता है, ठीक है. तो अब कोई भी प्लेनेट होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन कारक उसका गुरु है. ये बात ध्यान रखिए, ठीक है. अशोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए. अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. तो इसीलिए ये सब चीजें एक दूसरे के कारक हैं, और ये इस घर के कारक होते हैं. और हम कभी भी जब प्रेडिक्शन करेंगे तो इन कारकों को हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है. Okay, Kishan. Last week we spoke about the sign lords. Yeah, right? sign lord. I'm coming on upon that
particular matter. So Okay, give, okay, it's fine. give me a moment. No problem. Yeah. So Okay, when you're presenting that, my question is, you've presented now the house lords, Ghar ki Malik, right? So yes. in terms of strength or importance, which will be more which will have more strength or importance, the house lord or the sign lord? As I told you, You yeah, don't have to answer it now. When you're presenting that, then just keep it in mind. yeah. Whenever you know, as I told you, they are the landlord. These are they are the landlord, and that planet, whoever comes, he is become tenanted. Yes. He's not particular over there, but he's a tenanted person. But he's paying something. He's paying something, but doesn't matter. The criteria belongs to him. But at the moment, he is there and presence is there. So the karka is very important. So karka's impact is 60% always be all the planets. 60%. And Okay. and 20% the planet and 20% the Rashi. Okay. Okay. So you can think criteria like this. Okay. So now again I'm sharing a screen. We talked these things last time. This is the Rashis. This is the Rashis. Yes. So this is Aries, Lord is Mars. Last time we spoke about this, no? Yeah. Okay. So I have to must ask some questions. हाँ जी देवी, open कीजिए अपना. Please everybody open their videos so I should see their faces and then understood what they did. Yes. Okay, so आपने ये सब देखा, ये सारा कुछ इस जो मैंने आपको शेयर किया है. मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल. ओके. अशोक जी, ये मौन व्रत में तो नहीं है? Is it? I asked this person 3 times, but didn't respond. That's why I'm asking. Okay. No, he's got his hand. He's got his hand up. He's got his hand up. He's alone. So, but he should be there, na? I asked him 2-3 times. Okay. जोली जी, आपने कुछ चीजें नोट डाउन की? जी पंडित जी. अच्छा, तो मैंने जो चीजें आपको शो किया वो सब आपने नोट किया है, नहीं? ठीक है. जी मुझे सरिता ने भेज दिया था, मैंने लिया हुआ है. ओके 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 ओके, ठीक है. तो ये राशि है और ये इनके स्वामी है. ठीक है. तो जैसे वृषभ टॉरस है, उसके स्वामी वीनस शुक्र है. ठीक है. शुक्र. या एंड देन जेमिनाई है मिथुन, उसका जो लॉर्ड है वो बुध है. तो ये उनके ये भी नोट डाउन करने का सब्जेक्ट है. इसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए, तो फ्यूचर में हमें आसानी से हम आगे प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे. ठीक है. सो अभी ओके, चलिए आप सभी लोग वीडियो ओपन कीजिए अपना हमें पता चले.
चलिए, तो हमने अभी जो जो पढ़ा है, हमने जो भी पढ़ा है, काल पुरुष की कुंडली भी, we saw the काल पुरुष कुंडली, and then we saw the कारका also, हमने कारकों को भी देखा है उसके। फिर हमने देखा कि प्लेनेट और वो कौन सी राशि को रूल करते हैं, प्लेनेट विच राशि दे आर रूलिंग। ओके, तो अभी क्या, जैसे हम कोई कुंडली बनाते हैं, कोई भी चार्ट बनाते हैं सपोज करो, तो उसमें राशि नोट करते हैं, असेंडेंट हाथी जैसे कुंडली हम बनाएंगे ना, तो पर्टिकुलर जो भी जातक है, जो भी पर्सन है, वो किसी असेंडेंट में बॉर्न होता है। असेंडेंट का मतलब लगन हो गई, किसी लगन में बॉर्न होता है, तो उसकी वो जिस राशि में वो बॉर्न होगा वही उसकी लगन होगी, और उसी से हम उसकी बॉडी को देखेंगे, उसके शरीर को देखेंगे। तो अभी मैं एक और चीज शेयर कर रहा हूं आपको, विच इज आपको थोड़ा और श्योर करेगी। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कुंडली दिखाई दे रही है आपको? जी। तो हम, कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो ये उसका पहला, ये असेंडेंट उसकी बॉडी को दर्शाता है। यहाँ से हम क्या देखते हैं, उसके बॉडी पार्ट को देखते हैं, एंड लाइफ इन जर्नल, और उसके साधारण जो भी लाइफ में होने वाली चीजें हैं वो कैसे उसको एक्वायर करेगा, ये फर्स्ट हाउस हमको बताएगा। ठीक है, दिस कॉल्ड फर्स्ट हाउस। ठीक है, जी। दिस इज कॉल्ड सेकंड हाउस। सेकंड हाउस, यहाँ से हम उसकी वेल्थ को देखेंगे, उसकी। ठीक है, और उसकी जी। स्पीच, बोलने की क्षमता, वो कितना बोलता है, मैंने वो भी आपको भेजा था। ठीक है, एंड थर्ड हाउस, यहाँ से करेजियस, उसका करेज कितना है, उसका एफर्ट वो कितना डाल सकता है, और उसके सिबलिंग्स। ठीक है, तो इन जनरल ये सारे, ये फोर्थ हाउस से हम होम और उसका मदर, उसकी वेल्थ यहाँ से देखेंगे। फिफ्थ हाउस से इंटेलिजेंस देखेंगे, और चिल्ड्रन, बच्चे देखेंगे उसके। फिर सिक्स्थ हाउस है एनिमीज और वॉरियर, वो कितना लड़ता है बीमारियों से। सेवंथ हाउस उसकी वाइफ, और अगर वो औरत है तो उसका हस्बैंड, उसके डिजायर्स देखेंगे, वो क्या सोचता है। एट्थ हाउस लॉन्गिविटी और वर्नेबिलिटी, वहां से दुख भी देखा जाता है और आयु भी देखी जाती है। ठीक है, नाइन्थ हाउस से हम उसकी हायर लर्निंग देखते हैं, उसकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, लाइक कोई आफ्टर, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर इंटरमीडिएट यहाँ से देखेंगे, ग्रेजुएशन यहाँ से देखेंगे, हायर लर्निंग ग्रेजुएशन यहाँ से देखेंगे। ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद जो यदि वो और जो भी कोर्सेस करता है उससे हायर, वो सब यहाँ से देखेंगे। 10th हाउस होता है उसका प्रोफेशन, रेपुटेशन, उसकी पोजीशन क्या क्या है। 11th हाउस उसका गेन होता है, वो गेन कितना करेगा, दैट शुड बी सीन बाय द 11th हाउस। और 12th हाउस है उसकी डेथ और इनलाइटनमेंट, उसको मोक्ष मिलेगा कि नहीं, और उसकी मृत्यु कैसी होगी, वो हम 12th हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी हाउस हो, उससे जो 12वां घर है ना, वो उसको नेगेट करता है। जैसे फर्स्ट हाउस है तो उसको नेगेट कौन सा हाउस कर रहा है, 12th हाउस कर रहा है। ठीक है, बिकॉज दिस इज द बॉडी एंड 12th हाउस इज अ डेथ। ओके, सो अभी हम ये देखेंगे सेकंड हाउस को कौन सा हाउस नेगेट करेगा, फर्स्ट हाउस। हम ये क्यों करेगा, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए अपनी बॉडी को दांव पे लगाते हैं, मनी अर्न करने के लिए, घर को चलाने के लिए हमारा पूरा जीवन चला जाता है। सो फर्स्ट हाउस विल नेगेट, सेकंड हाउस विल नेगेट फर्स्ट हाउस। ओके, ऐसे थर्ड हाउस को कौन नेगेट करेगा, कौन उसको प्रॉब्लम में डालेगा, सेकंड हाउस। क्योंकि आपको आपका जो
अगर कोई आपका पैसा ले जा सकता है तो आपके सिबलिंग्स ले जा सकते हैं या फिर आपके भाई बहन, ये लोग वो पैसा ले जाएंगे तो वो वापस नहीं करेंगे, ठीक है, उनसे आप मांग भी नहीं सकते। और वट एवर करेज, आप कुछ करेज शो करोगे तो उसमें आपका पैसा खर्चा जरूर होगा, ठीक है, इसलिए ये नेगेट करता है। ओके, अभी अभी हम फोर्थ हाउस को, इसको कौन सा नेगेट करेगा? थर्ड हाउस। क्यों करेगा? अभी आप लोग बताओ क्यों करेगा थर्ड हाउस? इसलिए करेगा क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है? हमारा होम है, हमारा घर है, और घर को बनाने के लिए करेज की जरूरत पड़ती है। अगर आपको घर बनाना है अपना तो आपको करेज की जरूरत पड़ेगी, तो वो चीज आपको मेहनत तो लगेगी ना घर बनाने में, तो वो फोर्थ हाउस को कौन नेगेट करेगा? थर्ड हाउस। ऐसे ही फिफ्थ हाउस को कौन नेगेट करेगा? अगर बच्चा घर से पढ़ना चाहे तो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, तो फिफ्थ हाउस को नेगेट करेगा फोर्थ हाउस। मतलब किसी का बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो घर से बिगड़ा हुआ है, इसलिए नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, सो फोर्थ हाउस उसको नेगेट करेगा। ऐसे ही फिफ्थ हाउस है हमारी इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सिक्स्थ हाउस कौन है? ये सिक्स्थ हाउस है हमारे एनिमीज। तो हमारे शत्रु किस चीज पे आक्रमण करते हैं? हमारी इंटेलिजेंस पे। या हम अपने शत्रु को मारना चाहें तो किससे मार सकते हैं? अपनी बुद्धि से मार सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब देखो ये सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस को कौन सा हाउस नेगेट करेगा या कौन सा हाउस खराब करेगा? सिक्स्थ हाउस। क्योंकि अगर वाइफ से शत्रुता हो जाए या हमारे स्पाउस से शत्रुता हो जाए या उससे प्रॉब्लम होगी तो तभी होगी जब एक दूसरे को हम प्रेम नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के एनिमी हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ऐसे ही ये है लॉन्गिविटी, मतलब ये सेवंथ हाउस जो है हमारे डिजायर्स का है, डिजायर्स। और हमारी आयु को कौन खत्म करता है? हमारे डिजायर्स खत्म करते हैं। हम दिन भर सब कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, ठीक है, तो हमारी आयु उसमें ही चली जाती है। आप लोग समझे उस बात को, ठीक है। ऐसे ही नाइन्थ हाउस है, हमारे भाग्य को कौन खराब करता है? हमारा हम जितना लेके आते हैं सब इसी आयु में भोग लेते हैं, इसलिए एट्थ हाउस नेगेट करता है, एट्थ हाउस उसको खराब करता है। टेंथ हाउस को अब देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। टेंथ हाउस है हमारा प्रोफेशन। हमारा भाग्य कैसे खराब होता है? जब हम किसी दूसरे काम को हमारा भाग्य हमको काम प्रोवाइड करता है और फिर हम उसको उससे पैसा अर्न करते हैं, तो हमारा भाग्य खर्च हो जाता है। किसमें? काम करने में। जो हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो खर्च हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही 11th हाउस, हम अपने प्रोफेशन से जो गेन करते हैं और फिर उसको काम में भी लगाते हैं, इसलिए 10th हाउस नेगेट करता है। और दिस कॉल्ड 12th हाउस, this is the death. Whatever you will gain, death will take everything. Okay? मृत्यु सब कुछ ले लेती है। इसलिए अगर मृत्यु व्यक्ति कब हो जीने की इच्छा कब करता है? जब उसके पास पैसा हो, और पैसा नहीं होता तो कहता है इससे अच्छा तो रहे चाहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो ये ईच ऑफ द हाउस नेगेट हिज 12th हाउस। सो ये बात आपके समझ में आ गई? ये बात, सो दिस इज जब हम कोई भी प्लेनेट, एनी प्लेनेट, अभी हम आपको कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बताता हूँ, सो उससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी पड़ेगा।
Yes, we chatted briefly last night. There's a hurricane headed for Miami. The weather is so bad they've had to cancel all flights. Some Virginia. Evacuation is in Fort Royal Island, South Carolina. She was supposed to fly back last night. It's too bad she was delayed. What? Oh, it will go there. Okay, अभी ये दिखाई दे रहा है आपको? Everybody can see this one? Yes, the parashal light. Yeah, parashal light. Okay. So you guys can see this chart, eh? Okay. Mm-hmm. So अभी इस चार्ट में हम देखते हैं कि you see this Rashi? Which Rashi is it? It is Cancer. Yeah, Cancer. So the 4-number Rashi called Cancer, and his Lord is Moon. So we can say the first Lord is sitting in a first house. What we will say? The first Lord sitting in a first house. So this is his favorable position. Okay. तो अभी हम इनको देखेंगे तो हम इनको क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे this person is the self-centered person. हम क्या कहेंगे? This person will be the self-centered because the Lord is sitting here only. Okay. So क्योंकि पहले घर का मालिक पहले घर में ही बैठा है, ठीक है? तो हम कहेंगे this person always he knows how to live healthy. इनको पता है कि हमको स्वस्थ कैसे रहना है, ठीक है? और ये अपनी बॉडी पे बहुत मेहनत करेंगे बिकॉज वो जो घर का जो मालिक है वो अपने घर में ही बैठा हुआ है, ठीक है ना? अभी देखो, अभी ये है सेकंड हाउस. विच राशि इज इट इज? संजीव, डोंट से यू एनीथिंग. Okay. Vinit, can you tell me which Rashi it is? Leo. Leo. And his Lord is? Sun. Sun. Yeah, Sun. ठीक है, बहुत अच्छी बात. तो अभी हम इसको कहेंगे second Lord in sitting in a first house. What will see? दूसरे घर का मालिक पहले घर में बैठा हुआ है, ठीक है? तो हम ये क्या कहेंगे? अब देखो इसमें दो चीजें हैं. जैसे अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सेकंड हाउस को नेगेट करेगा फर्स्ट हाउस. क्या करेगा? First house. नेगेट करेगा ना, फर्स्ट हाउस नेगेट करेगा. तो अभी क्या है कि ये इस पर्सन को हम के बारे में हम क्या कहेंगे? हम इस पर्सन के बारे में कहेंगे कि इसको मनी अर्न करने में ही नोज हाउ टू अर्न मनी, क्योंकि इसके धन का मालिक यहीं बैठा हुआ है. इस पर्सन को ये पता है कि हमें पैसा कैसे कमाना है, लेकिन पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल भी करना पड़ेगा और वो स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो लॉर्ड जो है अपने घर से बाहर में बैठ गया है, वो कमजोर हो गया है. तो ही नोज हाउ टू अर्न मनी बट ही हैव टू लॉट ऑफ स्ट्रगल इन हिज लाइफ. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी पैसा कमाने में.
और पैसे की सेविंग करने में, बिकॉज सेकंड हाउस इज द सेविंग मनी, सेव्ड मनी। ओके, तो मनी को सेव्ड करने में भी प्रॉब्लम, वो नेगेट कर रहा है ना। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इज इट एवरीवन अंडरस्टूड? सो हम ये कहेंगे सेकंड हाउस जो है वो मनी का हाउस है। किसका हाउस है? मनी का है। मनी आउट धन। हाँ, और हमारी फैमिली का भी घर है, फैमिली भी हमारी जो ओवरऑल फैमिली है। ठीक है, तो जब ओवरऑल फैमिली सन की राशि में पड़ती है, उसका लॉर्ड 12th में होता है, तो पर्सन को अपने घर से दूर रहना पड़ता है। कहाँ रहना पड़ता है? फार, बिकॉज 12th हाउस इज या 12th हाउस 12वें घर से हम लोग विदेश भी देखते हैं ना, 12वां घर जो होता है वो अब्रॉड का होता है। ओके, सो इनको अपनी फैमिली में बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाएंगे। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। इससे वो नेगेशन होती है, इससे उसका कारक जो है वो कारक बताता है ये पर्सन वहां पे रहेगा कि नहीं। अब दूसरे घर में हम एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे वीनस है। वीनस किस चीज का कारक है? वीनस वेल्थ का कारक है, वीनस लग्जरी का कारक है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब ये पर्सन बॉर्न हुआ ना, तो इसके घर में लग्जरियस चीजें थी, और जिनकी जो फैमिली थी वो काफी अच्छी स्ट्रेंथन फैमिली थी, मजबूत। बिकॉज क्यों कहेंगे हम? इसलिए कहेंगे कि वीनस की प्रेजेंस वहां पे है। ठीक है, वीनस की प्रेजेंस वहां पे है। ओके, तो वीनस वेल्थ का कारक होता है, या वेल्थ का सेकंड 2 नंबर की राशि किसकी होती है? टॉरस होती है ना। काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर की राशि टॉरस होती है। तो वेल्थ का कारक बृहस्पति भी है, वेल्थ का कारक शुक्र भी है। जितने गुरु होते हैं ना, शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु है, तो वो भी पैसा देते हैं, और बृहस्पति है वो देवताओं के गुरु हैं, वो गाइडेंस के थ्रू पैसा देते हैं। ठीक है, तो जब वीनस की प्रेजेंस अपने ओन हाउस में रहेगी, इट मींस ये जो लैंड है ना, इट्स बिलोंग टू वीनस एंड जुपिटर, बोथ ऑफ देम। तो जब वहां पे रहेगा तो ये बताइए कि ये पर्सन जब बॉर्न हुआ तो उनकी फैमिली वो थोड़ी रिच फैमिली थी। ठीक है, और कंबाइंड फैमिली थी। इट मींस उसमें और भी लोग थे, मतलब कि उनके चाचा भी थे, उनके ताऊ भी थे। इट मींस फैमिली कंबाइंड थी। ओके, ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड हाउस। ये थर्ड हाउस किसका है? कन्या। ये कन्या है, लेकिन यहाँ से क्या क्या देखते हैं ये बताइए। यहाँ से हाउस हम देखते हैं, थर्ड हाउस से हम लोग देखते हैं अपना आवर यंगर सिबलिंग, मार्केटिंग एफर्ट्स, एंड करेज हमारी करेज कितनी, हॉबीज। हाँ करेज। हाँ, हमारी हॉबीज क्या क्या हैं। ओके, तो हॉबीज देखने के लिए हम इसका जो लॉर्ड है, कन्या का जो लॉर्ड है वो है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी इज सिटिंग इन अ फर्स्ट हाउस। तो मर्क्यूरी जो है वो इंटेलेक्चुअल का कारक होता है, बुद्धिमत्ता का कारक होता है। सो हम ये कहेंगे इनकी जो हॉबीज हैं, या इनके जो छोटे भाई बहन है, सिबलिंग्स जो हैं, ओके, सो उनका बहुत सारा, बिकॉज द लॉर्ड इज सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, इनके छोटे सिबलिंग्स भी होंगे, ये 100% है। इनके बाद पैदा हुए होंगे, बिकॉज मर्करी प्रेजेंस इज देयर। ओके, और फिर हम कहेंगे कि इनकी हॉबीज मर्करी से रिलेटेड होंगी। मर्करी की हॉबीज क्या क्या होती हैं? मर्करी की जो होती है वो मार्केटिंग होती है। मर्करी की जो हॉबी होती है वो मार्केट होता है। वो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, ट्रेडर्स टेक एंड सेल, मर्करी होते हैं, वो मर्करी होते हैं। और जो बच्चा बहुत पढ़ता है ना, वो मर्करी होता है।
जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, वो मरकरी होता है। तो इस व्यक्ति को किताबें पढ़ने का शौक होगा। ही लव्स बुक्स। ओके, हॉबीज क्या है? मरकरी से रिलेटेड। तो मरकरी की हॉबीज क्या क्या है? उसकी, जिसका मरकरी स्ट्रांग होता है ना, उसके घर में एक लाइब्रेरी जरूर होती है। ओके, तो अभी मेरे पीछे आप लाइब्रेरी देख रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ मरकरी। बिकॉज ऑफ मरकरी। मरकरी को किताबें इकट्ठा करने का शौक होता है, और अगर वो मरकरी रेट्रो हो तब वो ढेर सारी किताबें इकट्ठा करता है। वो तब ढेर सारी किताबें इकट्ठा करता है। ओके, सो लेट्स सी इन दिस चार्ट। यू सी दिस, ये दूसरा चार्ट देखा आपने? इस चार्ट में क्या है? मरकरी थर्ड हाउस का लॉर्ड है ना, जी और सिटिंग इन 10th हाउस एंड रेट्रो। ओके, रेट्रो बैठा हुआ है ना। रेट्रो का मतलब होता है वक्री, वक्री ग्रह। तो जो ग्रह वक्री हो जाए ना, उसको वो काम उसको जबरदस्ती और उसको ढेर सारा करना पसंद होता है। तो ये जो कुंडली है, ये मेरी कुंडली है, और ये जो मरकरी है वो रेट्रो बैठा है मेरे वर्क प्लेस पे। तो व्यक्ति की लाइब्रेरी कहाँ पे होगी? उसके वर्क प्लेस पे, और ढेर सारी बुक्स होंगी। उसकी हॉबीज होगी बुक्स को पढ़ना। ठीक है, ओके। So third house, when we see the third house and we see Mercury is also here. अभी हम देखते हैं इसका फोर्थ हाउस। ये फोर्थ हाउस है ना इसका। इसका लॉर्ड कौन है? इसका लॉर्ड है वीनस, लिब्रा। 7th नंबर राशि इज लिब्रा। So Libra lord is Venus. Okay. सो अब हम यहाँ पे देखेंगे ये कौन कौन यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये इसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। ओके, संजय जी आप बताइए, लिब्रा का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? पंडित जी सही बताऊं, मैंने ढंग से पढ़ा नहीं इस वीक में। ओके, नहीं ठीक है, मैं आपके बिजी शेड्यूल को जानता हूँ, लेकिन अब देखिए ये तुला राशि है ना, 7 नंबर की राशि क्या है? तुला राशि। ठीक है, तुला राशि। अच्छा जी अच्छा, मुझे अब देवी बताएंगी। आपकी धर्मपत्नी से पूछता हूँ मैं। जी देवी आप बताइए, क्या बताऊं सर जी? ये बताइए 7 नंबर का लॉर्ड कौन है? तुला राशि लिब्रा का लॉर्ड कौन है? लिब्रा का, पेपर पेपर ये गड़बड़ है ना। हाँ चीटिंग। शुक्र। हाँ शुक्र है। एंड शुक्र जी। कहाँ पे बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है पहला दूसरा तीसरा चौथे घर में। चौथे घर में, नहीं, सेकंड हाउस में देवी। ये ओ सॉरी, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, जी अच्छा ये साची कुमार के नाम से जो है वो देवी बोलती भी है, कहाँ है? उस देवी को फ्लू बहुत हुआ है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपको थोड़ी खबर तो पड़ रही होगी ना, थोड़ी समझ में आ रही है देवी? समझ रही हूँ पंडित, समझ रही हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। अभी अशोक पांडे जी आप हैं वहां पे? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अशोक द्विवेदी जी, अशोक द्विवेदी जी आप तक आवाज जा रही है हमारी? ठीक है, ये दो लोग आज लगता है दोनों ही अशोक किसी प्रकार के शोक में है। अच्छा, ओके संजीव, ओके टेल मी, okay tell me the liberal lord is sitting which house? Venus sitting in the second house. Second house. Okay, and then one more thing I want to, okay, so अभी हम इसको इसके प्रेडिक्शन के बारे में, संजीव
Uh-huh. in this prediction, what you going to assume? Fourth lord is sitting in a second house. Yes. So second house is a dhan bhava. It's a money house. Correct. Okay. Uh-huh. So, and fourth house is our wealth, our properties. You saw the last time. Yes. It is our properties. Okay. Real estate, vehicles, assets. Yes. Yes. So this person उसका जो wealth होगा ना, उसका जो wealth होगा, वो उसका house होगा, वो उसका house होगा. Because house lord, उसके पास जो पैसा आएगा ना, whatever money he will earn, he will buy the property. He will invest in a property. Why? Because his wealth belongs to property. The wealth का जो lord है, is sitting in a second house. Okay. So इनका motive क्या रहेगा? What is his motive? What is his desires? If I earn lot of money, I'll buy lot of properties. I will create properties. I'll invest in the properties. Okay. Fine. So अभी इधर जो दो planet बैठे हैं, what they are going to do? The two planets are sitting there. Mars and Ketu. So Mars is the karaka of that particular house. Mars is a Mars का जो hobby होता है, Mars की जो तत्व होता है, Mars का जो वो होती है property, जो भूमि होती है ना, भूमि, it means whatever the Mars is the earthy planet. Okay, earthy planet. So जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं, जो व्यक्ति प्रॉपर्टीज का बिजनेस करते हैं, जो किसी को प्रॉपर्टी बाय एंड सेल करते हैं, तो मार्स उनका भी कारक होता है. ओके, सो ही कैन सजेस्ट समवन बाय अ गुड प्रॉपर्टी, सजेशन दे सकते हैं ये. और ये जब भी प्रॉपर्टी बाय करेंगे, वो बहुत ही सॉलिड प्रॉपर्टी होगी, उसमें बहुत सारा चेंजेस भी करेंगे. जो भी प्रॉपर्टी बाय करेंगे उसको चेंजेस भी उसमें करेंगे. बिकॉज ऑफ मार्स, अपने हिसाब से मार्स का अपना एक हिसाब होता है. ओके, और केतु जो वहां पे बैठा हुआ है, वो क्या करेगा? केतु क्या होता है? लिविंग थिंग्स होता है. लिविंग थिंग्स, इट मीन्स वॉट एवर. राहु होता है कैचिंग थिंग्स और केतु होता है लिविंग थिंग्स. ओके, तो जब मार्स होता है हमारा करेज, because is a karaka of third house. Is a karaka of third house. Mars is a courage. Our siblings. So मैंने आपको पहले बात किया ना कि ये हमारे जो कारक होते हैं बहुत इम्पैक्ट करते हैं. तो इनका कनेक्शन अपने सिबलिंग के साथ में कम होगा, इंटरेक्शन कम होती होगी. Because of the Ketu is there, that's why वो होगा. ओके, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको बताता हूँ. एक बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको फ्यूचर में कभी आप प्रेडिक्शन करेंगे ना, एक रिकॉर्ड. ओके, अभी हम जब ये कृष्णमूर्ति चार्ट है, जिस कुंडली को हम पढ़ते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड कृष्णमूर्ति चार्ट. सो कृष्णमूर्ति बताता है कि इस प्लेनेट की एक्चुअल पोजीशन क्या क्या है, एक्चुअल वो प्लेनेट जो है किस हाउस में है. सो इनका ये जो थर्ड हाउस है, यहाँ पे मार्स केतु बैठा है. यहाँ पे क्या बैठा है? मार्स एंड केतु. तो मार्स क्या है? मार्स है देवी है या हनुमान जी. ओके, दुर्गा का प्रतीक होता है मार्स. और केतु क्या होता है? फ्लैग होता है. केतु फ्लैग होता है. तो ये पर्सन जहां पे पैदा हुआ ना, वहां पे देवी जी का मंदिर था. बिकॉज थर्ड हाउस इज आवर नेबरहुड. थर्ड हाउस इज आवर नेबरहुड. सो आप अगर किसी को देखें कि पर्सन जब बॉर्न हुआ तो उसके आजू बाजू में क्या था,
तो उसके आजू बाजू में एक देवी का मंदिर था, बिकॉज द पर्सन व्हेन ही बोर्न, वो उनके नेक्स्ट, उनके बगल में, नेबरहुड में एक देवी का मंदिर था, बिकॉज मार्स एंड केतु आर देयर. सो मार्स एंड केतु बिलोंग्स टू दुर्गा. मार्स इज द, And टेल मी. Panditji, there's no planet there, then how do you read that? Okay, then Rashi will tell us. Then Rashi will, Okay. Rashi will there. So Rashi and Rashi Lord. Rashi and Rashi Lord will tell us कि वहां पे क्या है क्या नहीं है. Okay. और तो ये चीजें हमें कभी भी एस्ट्रो वास्तु देखना हो तो हम यहाँ से देखते हैं. अब एक और इंटरेस्टिंग थिंग्स वी आर गोइंग टू सी. ये भी आपको नोट डाउन करना होगा. आपको ये दिखाई दे रहा है? No. नो. ओके. Now able to see? Yes. Yes. So note down. This is called Rashi. Is the, you know, this is a, some Rashi is a movable Rashi Mm-hmm. and stable Rashi Mm-hmm. and Viswabhav. It means both of side. They can move. Cardinal. Yeah, cardinal. They can move and they can stay over there. Okay. So we call Char Rashi. It's a movable Rashi. So Mesh in a first Rashi is the movable Rashi. Fourth Rashi, Kark Rashi is the movable. Tula is movable, and Capricorn, Makar is movable. Okay. So Aries, Cancer, Libra, and Capricorn is the movable. Okay. And stable Rashi is a Taurus, Leo, Mm-hmm. Scorpio, Mm-hmm. and Capricorn. Capricorn, we already had. Oh, one second. It's a Kumbh Rashi. It's a Kumbh Rashi. Which Rashi? Aquarius. Sorry, Aquarius. And the cardinal Rashi is the Gemini, Virgo, Sagittarius, and Pisces. Okay. Mm-hmm. So whenever any planet go in a Aries Rashi, Aries, whenever any planet go there, so Aries Rashi, it means the planet will active, always active. That planets have lot of activity. And when any planet go in a Taurus, so that planet has slowness in his work style. He will work on his own style. If you want to work, so he'll work. If he don't want to work, nobody can tell him do this. And Mithun Rashi in Gemini, if any planet in Gemini, that depend on their mood.
either the person who's sitting with him, so they can work hard as well and they can work slow as well, depend on their moods. So as it is, if in a Cancer, any planet in a Cancer Rashi, he'll try to work very fast style. He want to do something he want to acquire everything very quickly. Okay. And if he's a Leo, it means depend on which position he is. There is own style of working. उसका अपना तरीका होगा काम करने का, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते सिंह राशि वालों को। और अगर वो कन्या में है तो उसकी संगति कैसी है, उसके साथ में कौन बैठा है, तो वो काम करेगा। सो प्लैनेट की वर्किंग स्टाइल डिपेंड ऑन दिस अगर हमको देखना है तो हम कैसे देखेंगे वो हमको, you know this chart, you see this chart again. We're still seeing the Rashi. Okay, so I have to go back and stop that one and then share you the chart. Okay, now you get it? Yeah. Again. Okay, so you see that the Jupiter is sitting in a Cancer. Okay, so Jupiter make him active every time. Jupiter is active every time. He every time want to acquire the knowledge wherever it comes. If suppose Jupiter sit in a Singh, like Venus is sitting there, Venus. So Venus is the karka of luxurious things. Venus is karka of wealth. So what? अगर इनको पैसा कमाना, if you want to earn money, क्योंकि so he have to work very hard because Venus is not supporting him, because he is sitting in a very moody planet, moody Rashi. So he have, if he, अगर इनके अपने पत्नी के साथ संबंध अच्छे रहे, because if he support his wife, either उनके पास जो मनी है, जो whatever the money he have it, whatever property he have it, उस प्रॉपर्टी का अगर सही प्रयोग नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी will not give him anything. So he have to think about it because that planet is very slow. Okay, because it's sitting in a Leo. So कोई भी नंबर एक राशि में कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो वो चर, it means he is very active. He is very active to go there, to do work. So Char Rashi, movable Rashi, is very active Rashi. So they can tell you either this person will work very quality work or his work in his own mood. वो अपने हिसाब से काम करेगा या और कैसे काम करेगा, ठीक है? ओके, चलो अभी ओके, तो अभी आप लोग बताइए और क्या, अभी जितना हमने बात की है उसमें कोई क्वेश्चंस हैं? हाँ जी, चेतना जी, बिटिया का ही नाम है, सरिता जी, आप बताएं, कुछ क्वेश्चन है आपके? कुछ चीज नहीं समझ में आ रही तो बताइए, क्योंकि आपके साथ ही चलना है, ठीक है, आप सबके साथ। सो एनी क्वेश्चन, कुछ भी आता हो, ये जरूरी नहीं कि मैं जितना बताऊं उतना आपको आए, कुछ भी बताइए, तो बताएंगे तो डायरेक्शन अगली मैं फिक्स करूंगा। जी अभी मेरे को इसमें थोड़ा कम ही समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी, ओके, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है कि अभी हम एक बार दोबारा से हम क्लियर करते हैं, दोबारा चीजों को क्लियर करते हैं। तो हम ये जो हमने राशि देखी ना, हमने जो राशि देखी ना, चर राशि, इसमें मेष राशि, मेष राशि है, ठीक है जी। तो कोई प्लैनेट अगर मेष राशि में रहेगा ना, तो वो चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है जो हमेशा एक्टिव रहे, एक्टिव, मूवेबल। तो अगर मेष राशि में कोई प्लैनेट होगा ना, तो वो प्लैनेट उस राशि के को एक्टिव बना देगा, एक्टिव कर देगा जी। जैसे कर्क राशि में कोई प्लैनेट है तो कर्क राशि बहुत एक्टिवेट राशि है ना जी। तो एक्टिवेट राशि है तो उसमें कोई प्लैनेट होगा तो हमेशा एक्टिव रहेगा, वो सोएगा नहीं, वो सोते समय भी काम में कुछ
एक्टिव रहेगा, उसको एक्टिव रहना उसका उसकी 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 मजबूरी हो जाएगी। और अगर जी कोई वृषभ राशि में रहेगा, वृषभ राशि में, तो जी वो थोड़ा अड़ियल स्वभाव का रहेगा, अड़ियल स्वभाव का, जी क्योंकि स्थिर राशि है ना। स्थिर का मतलब जी अब वो बैठ गई तो बैठ गई, अभी उसको उसके मन में आएगा तो चलेगी, नहीं मन में आएगा तो नहीं, मतलब कि वो चल नहीं सकती ना। तो उसमें जाने के जी बाद वो ग्रह भी अगर वो ग्रह भी जाएगा ना उस घर में, तो वो भी बहुत सुस्त हो जाएगा, क्योंकि जिस जगह बैठा है वो जगह सुस्त लोगों की है। ठीक है। ओ, जी ऐसे ही कोई प्लेनेट सिंह राशि में चला जाए, लियो में चला जाए, तो क्या होगा, वो प्लेनेट फिर रहेगा। अपनी मर्जी से काम करेगा। ठीक है। जी जी वैसे ही द्विस्वभाव, ये दुस्वभाव जो राशियां होती है ना, जी ये राशि, ये इस राशि में अगर मिथुन में, टॉरस में कोई ग्रह बैठेगा, तो उसके साथ में और कोई प्लेनेट कैसे बैठा हुआ है और इसका लॉर्ड कैसे बैठा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। जी तो इसमें जो भी जाएगा उसका वो उसके मन में आएगा तो करेगा, और नहीं मन में आएगा तो वो बैठा रहेगा, या उसके साथ में कोई प्लेनेट, एक्टिव प्लेनेट बैठा हुआ है तो वो भागेगा, और नहीं तो नहीं भागेगा। 3 प्रकार के बच्चे होते हैं ना, बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। एक बच्चा होता है जो जी दौड़ के काम करता है, उसको बोलो बेटा ये लेके आ, तो लेके आता है। जी ठीक है। और एक बच्चा है, जी उसको कहो तो उसको कोई ना कोई बहाना बनाना है, बाद में लाऊंगा, थोड़ी देर बाद लाऊंगा। ठीक है। और एक बच्चा होता है, उसका अगर संगति अच्छी है, तो या उसके साथ में कोई आदमी बैठा है बढ़िया वाला आदमी, तो वो उसको देख के और भाग के जाएगा। और अगर कोई घटिया आदमी बैठा है तो वो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अगर वो बच्चा सही। गेम खेल रहा है तो नहीं जाएगा। अगर वो बच्चा गेम खेल रहा है तो नहीं जाएगा। जी अगर वो बच्चा आराम से मतलब कि आपकी बात सुन रहा है तो वो जाएगा। तो ये जी स्वभाव, जो द्विस्वभाव का मतलब जिनके पास दोनों दोनों एबिलिटी होती है, वो मूव जी भी कर सकते हैं और वो बैठे भी रह सकते हैं। अगर बैठे भी उनको रह कोई सकते। काम नहीं है तो पूरे दिन वो सोते रहेंगे। बच्चा ऐसा भी होता है कि अगर हाँ जी उनका होमवर्क पूरा हो गया तो पूरा दिन सोएगा वो, उसको कोई मतलब नहीं कि दूसरा कोई काम कर ले। लेकिन जी अगर वो बच्चा मेष राशि का होगा, तो अगर उसको काम नहीं है ना, तो वो काम खोज लेगा, खोज लेगा। जी हाँ, वो दूसरा काम पे चला जाएगा। और वृषभ राशि में तो कोई काम नहीं करेगा, वो अपनी अपनी वो ना तो होमवर्क पूरा करेगा और ना ही वो कोई दूसरा काम खोजेगा। ठीक है। जी तो ये अंतर है तीनों में, चर, स्थिर और द्विस्वभाव में। ठीक है। जी अब समझ में आ गया सर जी। समझ में आ गया। ठीक है। जी संजय जी, आपको समझ में आया कुछ? थोड़ा थोड़ा है पंडित जी। अच्छा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि मेष राशि क्या है। मेष राशि है चर, ये चर राशि। मूवेबल। चर का मतलब मूवेबल, जो एक्टिव रहता हो हमेशा। ठीक है। जी जो एक्टिव रहता हो हमेशा। ठीक है। अभी तो मेष राशि में कोई भी प्लैनेट जाएगा ना, कोई प्लैनेट जाएगा इस राशि में, तो वो हमेशा एक्टिव रहेगा। वो अपने कारक को अपना फल हमेशा देता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ओके। उसकी एक्टिवेशन हमेशा रहेगी। वो दशा में आया है, गोचर में आया है कि नहीं आया है, वो अपना इम्पैक्ट वो स्वभाव में इम्पैक्ट देता है। हमारा जैसे स्वभाव है ना, जैसे आपका स्वभाव मतलब है, आपका मतलब ये स्वभाव मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 राशि के जो जातक हैं, ये हाँ, हमेशा मतलब एक्टिव रहते हैं। हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये ना, ये इनको इनको इनकी एक्टिविटी के बारे में कहना नहीं पड़ता कि आप चलो, ये जब कहो तब तैयार रहते हैं साथ में चलने के लिए। इनको कभी कह दो तो चलने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है। और ये जो वृष, सिंह और वृश्चिक और कुंभ है, इनको ना, इनको अगर अगर आपने अचानक कह दिया ना कि यहाँ चलो, तो वो कहेंगे हम तुम्हारे नौकर हैं। वो ये कहेंगे हम तुम्हारे नौकर, तुम्हें पहले बताना चाहिए। वो ये कहेंगे कि हमें पहले बताना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा पहले फोन करते तो हम चलते आपके साथ में। ठीक सुस्त है मतलब। है। ये नहीं, हाँ, ये सुस्त नहीं है। इनके पास ईगो होती है, इनके पास ईगो होती है। नहीं सुस्त होंगे, सरिता भी सुस्त है ना, कुंभ राशि। नहीं, इनको ना, इनके पास एक प्रकार की ईगो होती है, मतलब कि आपको पहले बताओ तो हम करेंगे, आपके हिसाब से हम नहीं चलेंगे। वी कैन नॉट वो आपके साथ में, जैसे आप, हाँ,
उनको पहले बताओ तो जाएंगे। और उसमें ही अब ये देखो जो तीसरी है मिथुन कन्या धनु मीन, ठीक है, इनके साथ आपने व्यवहार कैसा किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इनके साथ गए हो पहले तो ये आपके साथ जाएंगे, और नहीं गए हो तो नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक बात। समझिए। अच्छा जोली जी आपको कुछ समझ में आया? जी पंडित जी, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। मतलब मेरी अगर मकर राशि है तो मेरा लक्षण चर मतलब एक्टिव नेचर है मेरा, वैसे कह सकते हैं। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि जब मकर राशि है तो वो जो राशि होती है उनको ना कभी भी कोई काम के लिए कहो ना तो मना नहीं करते। वो कहेंगे जी। ठीक है देखते हैं क्या मेरे से क्या हो सकता है। और अगर कोई वृषभ जी। राशि का हो उससे कह दो आप, ठीक है, तो वो कहेगा तुम्हें 1 घंटा पहले बताना चाहिए, है ना। अभी अब मेरा समझ मूड में आ गया। अभी मेरा मूड नहीं है, ठीक है। और अगर जी। मिथुन राशि का हो तो वो अगर दिन में कह दिया तो ठीक है, और शाम को कह दिया तो उनसे बुरा मतलब उनसे बुरा कोई नहीं है, ठीक है। जी ऐसे ही है हमारे। हाँ ठीक है। तो हाँ जी विनीत तिवारी जी आपको समझ में आया कुछ? जी सर थोड़ा सा एक चीज पूछना चाह रहा था मैं। बोलिए बोलिए। ये सपोज करिए, मान लीजिए फर्स्ट हाउस जैसे आपने किया स्वयं का होता है, मान लीजिए इसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है, अभी आपने बोला ना इसमें मेष राशि, चर राशि है हाँ हाँ और कर्क राशि, तुला राशि। जैसे सपोज सेकंड हाउस में मान लीजिए फर्स्ट हाउस मेरा, समझ लीजिए मैं अपनी बात करूंगा, फर्स्ट हाउस मेरा जो क्या नाम है कुंभ है, ठीक है 11th हाउस है, 11th नंबर का मतलब वो ग्रह बैठा हुआ है, सेकंड जुपिटर का घर है। जी। तो क्या अगर उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो उसका वो 12 नंबर की मतलब वो हो गया, सेकंड हाउस में 12 नंबर की राशि बैठी हुई है। 12 नंबर है आपका मीन जो आता है वो द्वितीय भाव वाला आता है। तो वो क्या सेकंड हाउस को हमारे इफेक्ट करेगा, या थर्ड हाउस को, जैसे जो बैठा है किसी और घर में बैठा उसमें ग्रह नहीं बैठा उसको इफेक्ट करेगा? अच्छा अभी देखिए हम यहीं से शेयर करते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं। आपने जो पूछा उसी पे हम बात करते हैं, ठीक है। अभी क्लास का टाइम भी हो गया है तो हम क्विकली इसको करेंगे। ओके चलिए हम इसमें आपका चार्ट लगा देते हैं। डिड यू सी दिस चार्ट? यस। आपने ये कहा कि यहाँ पे ये वाला साइन है एक्वेरियस का, ठीक है। तो आपने ये पूछा, यू आस्क मी कि यहाँ पे अभी ये जो राशि है ये इम्पैक्ट कर, ये जो राशि, इस राशि में जो भी प्लैनेट रहेगा, जैसे केतु यहाँ पे रहेगा ना, केतु यहाँ पे रहेगा तो केतु हमेशा एक्टिवेट रहेगा, एक्टिवेट। और केतु क्या है, केतु प्लान बहुत बनाता है लेकिन काम कुछ नहीं करता। केतु प्लानर होता है, केतु का मतलब वो प्लान करने वाला, ठीक है। तो वो क्या कहेगा, व्यक्ति को खूब प्लान करवाएगा और लेकिन उसको परिस्थिति ऐसी दे देगा जिसमें उसके सारे प्लान फेल हो जाएंगे। ओके तो ये केतु हमेशा एक्टिव रखेगा आपको प्लान बनाने के लिए। आप एक बैलेंस शीट तैयार करोगे, आप एक प्रीपोजिशन बनाओगे, आप सोचोगे मैं जाके ऐसे बात करूंगा, बिकॉज केतु इज एक्टिव देयर, ठीक है। तो केतु इस राशि में है तो वो एक्टिव है, वो चर राशि में है ना, ठीक है, तो वो एक्टिव है। और ऐसे एक्वेरियस में मून है, मून एक्वेरियस में तो क्या है, मूडी बना देगा आपको, क्योंकि जो कुंभ राशि है वो क्या है, स्थिर राशि है। तो मून जब स्थिर में हो गया तो क्या है, व्यक्ति किसी मूवमेंट को ना अपने हिसाब से एंजॉय करेगा, मूड ही बना देगा। जब मूड है तो करेगा, नहीं है तो चाहे कुछ भी रहे, मेले में भी रहेगा तो चुपचाप बैठा रहेगा। स्थिर है ना, वो स्थिर राशि है, ठीक है। ऐसे ही ये कर्क राशि है, कर्क में सन बैठा हुआ है, ठीक है। तो पत्नी को क्या बनाएगा, एक्टिव बना देगा, ठीक है, क्योंकि वो पत्नी का घर है ना, 7th हाउस, तो पत्नी को एक्टिव बना देगा। और राहु भी बैठा हुआ है तो ये भी एक्टिव है, तो सूर्य और राहु एक्टिव होंगे तो क्या करेंगे,
वो सूर्य और राहु का क्या ग्रहण होता है? ग्रहण दोष होता है ना। तो हम्म, पत्नी के मुंह पे हमेशा क्या लगा रहेगा? ताला। ठीक है, तो वही पे तो इसीलिए इससे देखा जाता है। लेकिन वो अंदर ही अंदर वो एक्टिव रहेगी, ऐसा नहीं कि एक्टिव नहीं रहेगी, लेकिन उसका जो नेचर है वो एक्टिव नेचर उसको बना के रखेगा इस तरीके से। ठीक है ना? ओके। ठीक। ऐसे ही नहीं, थर्ड जैसे मान लीजिए साहब, देखिए ये हाँ, फोर्थ हाउस में जैसे देखिए क्या है, फोर्थ हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है और एक हाँ, नंबर की मतलब एक नंबर का हाउस है, तो इसका मतलब स्वामी हुआ जो एक नंबर मार्स का हुआ वो मार्स में हुआ। सॉरी हाँ, ही इज सिटिंग उसका स्वामी मंगल हुआ। हाँ उसका, और मंगल किस राशि में बैठा है? मिथुन राशि में। मिथुन राशि क्या है? द्विस्वभाव। ठीक है, तो ये माता का नेचर बताएगी, ये माता का नेचर बताएगी कि माता के मूड पे डिपेंड करता है। अगर उनके साथ में अगर लोग अच्छे लोग हैं तो वो चीजों को अच्छी तरीके से करेंगी, अगर अच्छे नहीं है तो फिर वो बहुत ही खराब तरीके अपने तरीके से रूल करना चाहेंगी। क्योंकि मार्स क्या है? ठीक। मार्स एक्टिव होता है, मार्स सेनापति है। ठीक है, तो सेनापति घर को रूल, राज्य को सेनापति रूल करना चाहता है। समझ गए आप मेरी बात? अब वो बैठा हुआ है मरकरी के साथ में। ठीक है, मरकरी के साथ में बैठा हुआ, लेकिन मार्स कहाँ बैठा है? 6th हाउस में। 6th हाउस किस चीज का हाउस होता है? 6th हाउस है आपका आपके लोन है, जॉब्स है, कंपटीशन है, सेविंग्स है, आपकी लॉन्गिट्यूशंस है, डिसीज भी सर्विस तो है, है, डिसीज भी तो है। डिजीज। हाँ, डिजीज। हाँ, तो मदर का हेल्थ क्या करेगा? क्योंकि 4th लॉर्ड 6th में बैठ गया, तो मदर का हेल्थ सफर करेगी, डिसीज रहेगी, उनको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक। हाँ, ओके। सो इसलिए इस तरीके से हमें इसको कंक्लूजन में लाना होता है कि हाउस लॉर्ड कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, ओके। तो ठीक है। अभी हमें इस तरीके से इस काम को आगे करना होगा। ठीक है, तो अब हम